Bragg's law, right? Yes, ma'am. Okay, so today we'll do numericals on based upon the Bragg's law or Bragg's equation. So, so can anyone tell me what is Bragg's equation? Has anybody remember what is Bragg's equation? 2d sin theta is equals to n lambda. Very good. 2d sine theta is equal to n lambda. Okay, so where what is this d? ये d Interplanar spacing of the crystal. yes, interplanar spacing. What is theta? Theta is the glancing angle, n is order of reflection, and lambda is the wavelength of light used, right? So based upon this formula, we'll solve some questions. So now I'm going to read the questions. I'm going to write their values in this whiteboard, and then you need to solve it. So the first question is, listen it carefully. The spacing between the principal plane of NaCl crystal is 2.82 angstrom. So what does this mean? Spacing between principal planes? D. D, very good. So D is given as 2.82. मैम स्टार्टिंग से बोले ना, थोड़ा नेटवर्क इशू था तो सुनाई नहीं दिया। ओके, बट बच्चे आप लोग कोशिश किया करो कि नेटवर्क में रहो, और अगर नेटवर्क तुम लोग के जाते तो तुम वेट किया करो थोड़ा, ठीक है? हाँ ठीक है मैम। So the spacing between the principal planes of NaCl crystal is 2.82 angstrom. It is found that the first order Bragg reflection means n equal to 1, occurs at an angle of 10 degree. That means theta is equal to 10 degree. So what is the wavelength of X-rays? So you need to calculate the value of lambda. So I'm going to read this question once again. Values I have written over here. The spacing between the principal planes of NaCl crystal is 2.82 angstrom. It is found that the first order Bragg's reflection occurs at an angle of 10 degree. What is wavelength of X-ray used? So just calculate this value of lambda. You can use your calculators and tell me the answer. 0.979 And unit will be? angstrom. Angstrom. Yes. सब लोग सॉल्व करो इसको. 0.9793. Yes. Tell me units also. जब तुम लोग कोई आंसर बताते हो तो बच गई। okay, so what you need to do, you need to calculate this value of lambda. That means 2d sine theta, I can write it as, is equal to lambda because n equal to 1 first order reflection. So यहाँ से lambda is equal to 2 into interplanar spacing is 2.82 and sine theta is sine 10 degree. So sine 10. So when you substitute this value, you will find out that lambda is equal to 0.9793 angstrom. 9759 आया मैम। No, it will be 9.9793. वही पॉइंट में है मैम। Yes. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं. दिस वन इज ओवर. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है. यू नीड टू कैलकुलेट लैम्डा ओनली and calculate the wavelength of an X-ray beam incident at 12 degree. That means theta is equal to 12 degree. For the first order reflection, that is n equal to 1. If the grating constant of the crystal is 3.035.
So this d is also known as grating constant. It is given as, it is 3.035 angstrom, right? So you need to calculate wavelength lambda. तो जब तुम लोग अपनी नोटबुक में तुम एग्जाम में लिखोगे तो तुम लोग कैसे लिखोगे? ग्लेंसिंग एंगल थीटा इक्वल टू 12 डिग्री, order of reflection comma n equal to 1, interplanar spacing comma d equal to this you like this you have to write in your exam. So solve this and tell me the value of lambda wavelength. 1.2 Yes. angstrom. 1.2620 Armstrong. Yes. It will be 1.262 angstrom. मैम अगर डी का वैल्यू निकालने का तो वो 1/√h²L² उससे निकालना पड़ेगा ना, प्लेन दिया रहेगा तो। बच्चे तुम पहली बात अगर वाले क्वेश्चंस मत पूछा करो, तुम्हें जो क्वेश्चन दिया गया है तुम उसको सॉल्व करो पहले। जो तुम्हें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसमें कुछ डाउट है तो वो बताओ तुम लोग। Ma'am, 1.2620 Yes, and unit will be, tell me unit also. angstrom. Yes. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? Any doubt in this question? Okay, so we'll move on to the next question. See, next question has 3 parts. First one is very easy, second one थोड़ा moderate है, third आप लोग के लिए नया है, ठीक है? So the question is the first one, huh? One second. First, what you need to calculate. The spacing between principal planes in a crystal of NaCl is 2.82. That means D is given as 2.82 angstrom. Right, this is 8. It is found that first order Bragg's reflection occurs at 10 degree. That means theta is equal to 10 degree and n equal to 1. Right. In first part, you need to calculate the wavelength lambda. I guess ये हम लोगों ने अभी किया है, right? First question, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So ये तुम लोग दोबारा से easily निकाल सकते हो just for practice. Second क्या है? At what angle does the second order reflection occurs? आया क्वेश्चन समझ में? At what angle does the second order reflection occurs? Yes, ma'am. करो फिर find out. बाकी वैल्यू सेम रहेंगी ना मैम? बाकी वैल्यू सेम रहेंगी. सी नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑल्सो. पार्ट फर्स्ट में तुम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बट यहाँ पे एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तुम लोग? एन कितना दे दिया अब हमें? 2. 2. यस, एंड यू नीड टू कैलकुलेट दिस थीटा. $20.320. Yes, and it will be 20.32 degree. on degree. Very good. 20.32 degree. Yes, सब लोग सॉल्व करके देखो. हाँ, C40 नवेद आया आंसर? हाँ मैम. क्या आंसर आया?
20.0771। ये गलत है। 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना मैम? करो, आंसर बताओ मुझे। 0.5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम? इक्वल्स टू 2 लिए। करो, सॉल्व करो। तुम्हारा थीटा की वैल्यू बताओ ना मुझे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे ऐसे? क्या आई एम आस्किंग अबाउट द आंसर दैट यू आर गेटिंग। ठीक है। अनम्यूट योरसेल्फ। मैम यस। मैम ये ब्रैग्स लॉ के थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में? थ्योरी क्वेश्चन में बच्चे क्या आता है, उसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि डिराइव दी ब्रैग्स इक्वेशन। ओके मैम। ठीक है, इतना ही पूछते हैं वो, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। ब्रैग्स मैम प्लेन व्हाट 20.31। इज, यस यस, डिग्रीज। ब्रैग्स प्लेन पूछे तो ब्रैग्स प्लेन क्या है? जो हमारे पैरेलल प्लेन्स हैं उनको हम लोग ब्रैग्स प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें से मोस्टली क्या पूछा जाता है? यही पूछा जाता है कि डिराइव ब्रैग्स इक्वेशन, या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग आ सकती है कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो आई गेस किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। जिसको डाउट है वो बताओ। ओके, तो इसमें करना क्या था बच्चे? ये 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है हमारे पास। तो अब की बार वो पूछ रहा है एन इक्वल टू 2 के लिए, तो एन 2 रख दोगे। लैम्डा की वैल्यू ऊपर से आपने निकाली थी 0.979, ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यू नो व्हाट इज डी, यू नो व्हाट इज 2, तो यहाँ से आपका साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से थीटा कैसे निकालोगे? थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यहाँ से तुम्हारा थीटा आ जाएगा। फाइन, नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं वो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन सीन। तो तुम्हें यानी अब एन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन सीन? सो हाउ विल यू डू दिस? सी, 2D साइन थीटा हमारा क्या है? ब्रैग्स लॉ, 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। सो अगर हम, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? इट गोज फ्रॉम 0 एंड मैक्सिमम इट गोज टू 1, राइट? यानी मैक्सिमम के लिए हमें साइन थीटा क्या कंसिडर करना पड़ेगा? 1। सो हम लोग इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट वन क्या है? हर एक के लिए तुम लोग साइन थीटा फाइंड आउट करो, हर वैल्यू ऑफ एन के लिए। पहले एन को 1 सब्स्टिट्यूट करो, फिर देखो साइन थीटा की क्या वैल्यू आई है। फिर एन इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो, फिर देखो साइन थीटा की क्या वैल्यू आई है। ऐसे तुम लोग करते जाओगे। कब तक करना है? जब तक तुम्हारी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं आ जाती। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ये कहीं 10 के आसपास 1 से बड़ी आ रही है, तो हमें कौन सा ऑर्डर लेना है? 9, क्योंकि हमारी साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 से ज्यादा होगा तो हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यू विल से द हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन इज 9। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को पहले इस तरीके से करो कि हर एक के लिए साइन थीटा फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद आई विल टेल यू अनदर मेथड। मैम हमको थीटा का वैल्यू निकालना है ना? हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ओके मैम। मैम वापस से बोलो ना एक बार। क्या क्या बोलूं वापस से? एक बार एक्सप्लेन करो ना ये क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो हम लोग अलग अलग n के लिए, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए साइन थीटा निकालेंगे और देखेंगे जहां पे हमारा साइन थीटा 1 से ज्यादा जाएगा मींस ये पॉसिबल नहीं है, तो हाईएस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्शन जो होगा वो उसके ऊपर वाला होगा। मैम n इक्वल टू 6 1.03 आ रहा है। मैम आंसर 5 है। यस, देन आंसर विल बी 5। वेरी गुड। ओके ठीक है, 6 के लिए आ रहा है तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 को कंसिडर हम लोग नहीं कर सकते, तो उससे जस्ट ऊपर वाला जो ऑर्डर होगा दैट वी विल कंसिडर। सब लोग सॉल्व करके देखो इसको। Yes, Shashank, have you got the answer? यस मैम 5। ओके, देखो एक तो इसका ये तरीका था, दूसरा इसका एक और शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है बच्चे, हम लोग साइन थीटा को यहीं पे हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो हम लोग साइन थीटा को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो नाउ आई कैन राइट 2d इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो यहां से n क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 2d बाय लैम्डा। बट अब ये जो तुम्हारी वैल्यू आएगी बच्चे n की, ये आएगी कुछ डेसिमल में। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो कंसीडर नहीं करना, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है दैट विल बी योर हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, जस्ट ट्राई इट फॉर दिस वन, जो अभी तुम लोगों ने किया उसके लिए देखो, क्योंकि हमारा n फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं हो सकता है 5 मैम। है ना। तो आया समझ? यस मैम। यस मैम। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is calculate the maximum order of diffraction if X-rays of wavelength 0.819 यानी lambda is equal to 0.819 angstrom are incident on a crystal of lattice spacing 0.282. Okay, so lattice spacing is d is equal to 0.282 nanometer. Okay, so you need to calculate n for maximum order of diffraction. मैम आंसर 6 है। मैम 6 आ रहा है। Yes, 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 मैम answer. 6 नो यूनिट। Yes, no unit 6. Very good. डी की बच्चे कर लो, या फिर क्या कर सकते हो, नैनोमीटर है उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, या नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों को क्या कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, इट्स अप टू यू।
Any doubt in this question? मैम आंसर क्या आना चाहिए? आपका क्या आ रहा है? मेरा 0.6 आ रहा है। 0.6 आ रहा है, तो बच्चे आपने यूनिट कन्वर्ट नहीं की, एक नैनोमीटर में है और एक एंगस्ट्रॉम वो में। 10⁻⁹ है, नीचे Yes. 10⁻10 है, ऊपर चला गया 10⁻10, फिर हाँ तो 6। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर हम लोग। देखो इसका जब तुम लोग n फाइंड आउट करोगे देन इट विल कम आउट टू बी 6.88। तो हमें डेसिमल के बाद जो है यस वो मैम। कंसिडर नहीं करना है, डेसिमल से पहले कंसिडर करना है। तो 6 विल बी योर हाईएस्ट रिफ्लेक्शन पॉसिबल, है ना, हाईएस्ट ऑर्डर। और मैम अगर मिनिमम के लिए करने करेगा तो ये मैंने लास्ट वाला क्या था बोला आपका। है, ये अगर मग अगर वाले क्वेश्चन मत पूछा करो तुम लोग। अच्छा, क्वेश्चन में मिनिमम दिया रहेगा तो क्या करना नहीं है? दिया रहेगा वो मिनिमम, मिनिमम वो खुद बताएगा कि कितना एंगल है, मिनिमम देगा। उसको सिर्फ पूछना है मैक्सिमम कितना हो सकता है। मिनिमम तुम्हें पता है n=1 ही रहेगा। मिनिमम 1 से 0 जब तुम जा नहीं सकते तो n=1 ही रहेगा मिनिमम। अच्छा ठीक है। बच्चे तुम लोग जो क्वेश्चन कराते हैं ना उस पे ध्यान ना देके तुम लोग अगर वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हो। ये अगर को छोड़ के जितना तुम्हारे सिलेबस में जो चीज है वो करो। मिनिमम वैल्यू ऑफ n कैन बी इक्वल टू 1 ओनली। यस। नहीं, पूछना काम है, बट तुम लोग कुछ भी पूछोगे दैट इज नॉट फाइन। मैम डाउट डाउट है मैम। नहीं नहीं नहीं, ऐसे यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जस्ट नाउ कीप क्वाइट अर्थ, जस्ट कीप क्वाइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन ओनली यू कैन आस्क, एंड डोंट ट्राई टू सपोर्ट दीज थिंग्स इन योर क्लास। And I have noticed, Earth, you don't have any patience in you. Just listen what teacher is saying to you. The next question is calculate Bragg angle if 200 plane. And sometime what happens, मेरे को चीज करानी है तो तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखोगे, कुछ टाइम बाद वही क्वेश्चन आएगा। अगर से पहले अगर तुम लोग स्टार्टिंग में ही मुझे अगर अगर शुरू कर दोगे तो तुम्हारा बेस ही नहीं बन पाएगा। सो जस्ट वेट की चीजें कैसी सामने आ रही हैं। ओके मैम। तो लास्ट में पूछ सकते हैं लेक्चर के लास्ट में? जब तुम्हारी यूनिट कंप्लीट हो जाए तब तुम्हें मुझे मैसेज कर देना कि तुम्हें क्या डाउट है, बट डाउट होने के लिए मैं भी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी कि तुमने क्या पढ़ा है। ठीक है मैम। नाउ जस्ट म्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट लिसन द क्वेश्चन। The next question is calculate Bragg angle if 200 planes of a BCC crystal with lattice parameter 2.814 angstrom gives second order reflection with X-rays of wavelength 0.71 angstrom. So if calculate Bragg angle means what you need to calculate? Theta. Theta. If 200 planes, so which plane are given? 200, okay, of a BCC crystal with lattice parameter. Now what do you understand by lattice parameter, or I can say lattice constant? A, right? If you remember, when Yes, we are ma'am. doing interplanar spacing we have done this. Okay, so the value of A is 2.814 angstrom. Fine. Give second order reflection. Okay, that means n equal to 2 with X-rays of wavelength, that means lambda is equal to 0.71 angstrom. So you need to calculate theta. So theta calculate करने से पहले क्या calculate करना होगा इस क्वेश्चन में? D. D. Very good. So first calculate this D. Ma'am, D is equals to 1.407 angstrom. Very good.
First calculate D, then calculate the value of theta. Ma'am, 30.30 Yes, degree. very good. 30.30 degree. Yes, roll number 33. क्या आंसर आया? मैम कर रहा हूँ. Okay. 16. I'm on the way. Okay. Ma'am, 30.306 Yes, 30.30, and units will be degree. degrees. Very good. I'm 30.3 degree. Yes, 30.30 degrees. Akansha, आया आंसर? Yes, ma'am. Okay. Vaibhav, 50. Yes, ma'am. 30.306 degrees. Yes, 30.30 degrees. ठीक है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन करा देती हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, कि अगर इस हिसाब का क्वेश्चन आएगा तो वैसे वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं डालने वाले, बट जैसे तुम लोग अगर करते हो तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ. बट उस क्वेश्चन में और अगर नहीं चाहिए मुझे, फाइन, क्योंकि तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसमें क्या देंगे, वो ऐसी वैल्यूज ही देंगे कि तुम्हारा आंसर इजीली निकल आए. Fine. So the next question is monochromatic X-ray beam of wavelength lambda is equal to 5.8189. So 5.8189 angstrom is reflected strongly for a glancing angle of theta equal to 75.86 degree. Fine. In first order, that means n equal to 1, by certain planes of cubic of lattice constant 3a. Okay, so lattice constant 3a means lattice constant कौन सा symbol है? A. A. So that means a is equal to 3 angstrom. So determine Miller indices of the possible reflecting planes. ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ती हूँ. Monochromatic X-ray beam of wavelength lambda is equal to 5.8189 angstrom is reflected strongly for a glancing angle of theta equal to 75.86 degree in first order by certain planes of cubic of lattice constant 3 angstrom. Calculate Miller indices of the possible reflected plane. यानी अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? HKL. ठीक है, पॉसिबल प्लेन्स. सो उसको फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बताओ? दैट मीन्स तुम्हें डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? Yes, ma'am. So first calculate this D. Ma'am, D is equals to 3 angstrom. D is equal to 3 angstrom. Okay. Yes, very good. बाकी भी कैलकुलेट करके देखो. हाँ, D इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम, ये बिल्कुल सही है. यहां से बच्चे थोड़ा सा सोचो. Yes, ma'am. D is equal to 3 angstrom. हाँ, ठीक है, तो अब इसको हम लोग D की वैल्यू को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि हमारी HKL की वैल्यूज आ जाए? सोच सकते हो तुम लोग थोड़ा सा, अगर
इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में सोचोगे तो तुम लोग आइडिया लगा सकते हो। मैम मुझे रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, तो Very मेला इंडाइसिस 100 100 होगा। yes, it could be 100, 010 और 001, 001 है ना। तो इन तीनों में से इन्होंने बोला पॉसिबल प्लेन्स कौन से होंगे, तो ये तीनों क्या हैं, ये तुम्हारे पॉसिबल प्लेन्स हैं। ओके, यस मैम। तो तुम लोग लिखोगे पॉसिबल प्लेन 100, 010 एंड 001, आया समझ में। और वो अगर तुम लोग यूं कहोगे मैम अगर उसने ऐसी वैल्यू दे दी वो ऐसी वैल्यू नहीं देगा, या तो वो √2 देगा √2 देगा, तो फिर तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी पॉसिबल प्लेन्स की, बताओ। अगर तुम्हारा जो ये है √2, जैसे अभी तुम्हारा क्या आया d इक्वल टू a आ गया, अगर तुम्हारा d √2a आया तो इसका क्या मतलब है, अगर वो प्लेन देगा तो बच्चे क्या देगा, या तो 100 देगा या 110 वाले देगा या 111 वाले देगा। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी इन केस अगर आ जाए, क्योंकि वो क्या करेगा थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करना होगा तो पूछ सकता है कि ये प्लेन कौन सा है। सो उस केस में तुम्हें डी निकाल, पहले डी फाइंड आउट करना है और ए के साथ रिलेशन देखना, और वो ऐसा ही रिलेशन देगा कि तुम्हारा कोई प्लेन है। इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके मैम। होता क्या है बच्चे, हमारे पास फिनोमेना बहुत सारे हैं, बट हमारे तुम्हारे टॉपिक में कुछ ही फिनोमेना है, तो हमें हायर लेवल पे जाना नहीं है, दैट्स इट। जितना तुम्हारे सिलेबस में है और जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं तुम लोग इतने कर लोगे, दे आर मोर देन सफिशिएंट। मैम हाँ बोलो। आपने बोला √2 आएगा, वो वाला कैसे करेंगे? रूट, मेरा मतलब था कि अगर तुम्हारे पास एच के एल की जो वैल्यू आएगी वो अगर 2 आएगी तो उस केस में क्या होगा, √2 आएगी तो उस केस में कौन सा प्लेन होगा, ओके √h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 आएगी तो उस केस में क्या होगा, 110 प्लेन आएगा, 011, 011। यस यस, बस इससे आगे तुम्हारा एग्जामिनर नहीं जाने वाला, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस।